आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदरतर पिरागर। 9 देवियों की पूजा करने के बाद 10वें दिन रावण का दहन होता है। तो 10 को हराया अर्थात 10 पर विजय प्राप्त की, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विकार। तो रावण जब यहाँ से उसका राज्य समाप्त हो जाता है तो राम राज्य आता है ना। इतना वर्षों से मौन करने वाले की वाणी में बहुत शक्ति होती है। पहले महान आत्माओं के वचन सुनने के लिए भागते थे कि एक वचन सुन ले हमारा उद्धार हो जाए। ये परमात्मा कहते अपने मन वचन कर्म को मनसा वाचा कर्मणा से हमें अपने मन को शुद्ध बनाना है। हमारा मन जब शुद्ध होगा तन भी शुद्ध होगा और ये पवित्रता की शक्ति से ही परमात्मा राम राज्य की स्थापना करते हैं। ओम शांति। Wish you a very, very, very happy Diwali to all of you. Thank you so much. So today we are celebrating Diwali in a very different, unique and special way, means in a spiritual way. So welcome to the campus of Shanti Sarovar, a unit of Brahma Kumaris, an organization which works to spread peace and humanity throughout the world, and it has more than 10,000 branches all over. So not talking much about anything else and straight away going towards celebrations, celebrating the festival of light, celebrating the festival of unity and uniqueness altogether. So first of all, I would like to invite on stage 2 little angels, Arohi and Dhita. Arohi and Dhita, please come on stage. So Arohi and Dhita will present a piece of art which involves worshipping Lord Shiva, praising him and making us to connect to him. So please welcome Dhita and Arohi. चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणाय निनगे नमो नमो। चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। सुंदरतर पिरागधर सुंदरतर पिराग धर गंगाधर गज चर्मांबरधर गंगाधर गज चर्मांबरधर। चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। तनदानं तदानं तदानं दानं दनं दानं तदानं तदानं दानं दानं तदानं तदानं दानं तदानं तदानं निरिसा स्वास निसरि निरिसा स्वास निसरि पम भाग मरे
ख्यातमां वदनम् गङ्गाचन्द्रसमागमतीर्थं प्रणवं नादमायुणरुम् तुडियो वेदकलामृतपुण्यं प्रकृतियुं निन्निल विकृतियुं निन्निल स्वरங்களிലായി ലയങ്ങളിലായി ശക്തി സ്വരൂപം ഓം ശിവോഹം ശ്രീ ശിവോഹം ഓം ശിവോഹം രുദ്രം ശ്രീകരം ವಸಿಮರುದ್ರಾಕ್ಷವು ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ತನದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ ತನಂ ದಾನಂ ತನದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ 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 ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ ದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ನಿರಿಸ ಸ್ವಾಸ ನಿಸರಿ ಕರಿಸ ಸ್ವಾಸ ನಿಸರ ನಿ ಪಮ ಭಾಗ ಮರಿ ಸರಿ ರಿ ಕರಿಸ ಮಾಮ ಪದರ ನಿಸರಿ ರಿ ಗಗ ಸರಿ ಗಗ ನಿಸದ ಮಮಗದ ನಿಸರಿ ರಿ ರಿ ಸದ ನಿ ಪಮ ಭಾಗ ಮರಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ಸರಿ ರಿ ಗಗ ರಿ ಸ ಕರಿ ಸ ರಿ ಕರಿ ಸ ಮಮ ಪದರ ನಿ ಸ ರಿ ಗಗ ಸಾರಿ ಗ ಸದ ನಿ ಮಮ ಭಾಗ ಮರಿ ಸರಿ Thank you so much, Dita and Arohi. So they are undergoing Kuchipudi dance training for about 3 years, and they are getting trained under Rajesh Dance Academy. So now I would like to invite on stage Sister Vishnupriya. How many of you have heard her before, Sister Vishnupriya? So many are for the first time. Okay. So Vishnupriya Ben is one of the top 7 finalists of Paduta Tiyaga competition 2015. She is a professional singer and she has earned more than 500 awards during her professional career. After that, she turned towards spirituality and she devoted her voice, her life and everything towards God and godly services. So a huge round of applause for Sister Vishnupriya Ben. And today she will going to take us on the journey of how Diwali awakens spirituality in us, plus how we can feel Diwali on a very higher level than just shopping, sweets and holidays. Okay. So Sister Vishnupriya. సో మొట్టమొదటిగా మీ అందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. సో ఈరోజు పాట కూడా ఆధ్యాత్మిక రహస్యాన్ని తెలిపే విధంగా దీపావళి యొక్క ఆధ్యాత్మిక రహస్యం యొక్క పాటలో మనం విందాము. ఏ విధంగా మన యొక్క శాంతి యొక్క మనం దీపం వెలిగిస్తాం కదా, శాంతి దీపాన్ని మనలో హృదయంలో శక్తి దీపాన్ని సంతోష దీపాన్ని ఎలా వెలిగించాలి అనేటువంటిది ఈ పాటలో ఉంది. ఇప్పుడు మనం విందాం.
వెలిగించాలి దీపమునే, సంతోష దీపానే హృదయంలోనే. దీపావళి పర్వదినాన ఇంటింటిలో సంతోషాలే, నలుదిశలా ప్రకాశం వ్యాపించే, అంధకారమే దూరమయ్యే. వెలిగించాలి దీపమునే, సంతోష దీపానే హృదయంలోనే. దీపరాజు శివబాబా మేల్కొలిపేలే, ఆత్మదీపమునే వెలిగించేలే. ఆత్మజ్యోతి వెలిగినప్పుడే సుఖశాంతులే నిండే, అనుభవమే చేసి చేయించేలే. అనుభవమే చేసి చేయించేలే, అనుభవమే చేసి చేయించేలే. వెలిగించాలి జ్యోతినే, శాంతి జ్యోతినే హృదయంలోనే. సంసారంలోనే నిరాశ ఛాయలే, ఆశా జ్యోతినే వెలిగింపచేసే. జ్ఞానధనమే సర్వశ్రేష్టమే, ఈ ధనంతో సంపన్న జీవితమే. జ్ఞానము యోగంతో జీవితం ప్రకాశించే, జ్ఞానము యోగంతో జీవితం ప్రకాశించే. వెలిగించాలి దీపానే, శాంతి దీపానే హృదయంలోనే. దీపావళి పర్వదినాన ఇంటింటిలో సంతోషాలే, నలుదిశలా ప్రకాశం వ్యాపించే, అంధకారమే దూరమయ్యే. వెలిగించాలి దీపానే, సంతోష దీపానే హృదయంలోనే. ఓం శాంతి. तो सभी को ये फेस्टिवल फीलिंग अब आ रही है, दिवाली फीलिंग, या किसी को होम सिकनेस हो रहा है, किसी को पटाखे याद आ रहे हैं, कुछ हो रहा है ऐसा? घर का तो याद आता है ना? तो जैसे देखो वो हमारा घर है, वैसा एक हमारा सच्चा घर भी है जिसमें हम हमारे परमात्मा पिता के साथ रहते हैं, है ना? और उसके अलग अलग गुण और शक्तियों को हम अलग अलग रूप में याद करते हैं. और दिवाली पे हम उसकी कौन सी शक्ति को याद करते हैं? हाँ, कौन सी शक्ति को याद करते हैं हम दिवाली के दिन स्पेसिफिकली? नहीं, दुर्गा माँ, नवरात्रि, दशहरा,
लक्ष्मी, है ना। तो लक्ष्मी माना सिर्फ स्थूल धन संपदा नहीं, लेकिन लक्ष्मी माना भरपूरता का एक एहसास, है ना। सो टुडे वी विल फील दैट द गॉडेस लक्ष्मी इज़ ब्लेसिंग अस, और उनके ब्लेसिंग्स किस रूप में आएंगे, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, संपन्नता और मधुरता, इन चारों रूपों में हम लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। तो जब हम शांति से रहेंगे, सुख से रहेंगे, तो धन की कमी कभी होगी? चाहे स्थूल धन थोड़ा कम ज़्यादा होगा, लेकिन वो कमी की फीलिंग होगी कभी? कभी नहीं होगी, है ना। क्योंकि जब यहाँ भरपूर है तो यहाँ तो अपने आप सब मोर और द लेस भरपूर हो ही जाता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज सिस्टर दीता एंड सिस्टर आरोही। अब वो हमें एक और जर्नी पर ले जाएंगे जिससे हम उस शक्ति को फील करेंगे। सो सिस्टर आरोही, ये सब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको जब हम परफॉर्म करते देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या फील होता है? कि हम भी कभी इस एज से पार हुए थे, है ना। हम भी, बहनों को तो स्पेशली लगता होगा, हम भी ऐसा तैयार हो के सब कुछ एंजॉय करते हैं। तो यही एक मौका होता है अपने चाइल्डहुड को इंटरनली रिलीव करने का। सो लेट्स एंजॉय दिस शक्ति वंदना।
So सभी को अच्छा लग रहा है डांसेस देख करके? You are feeling very good, ना? So shall we have one more? Huh? So again I would like to call on stage Dita and Arohi with their wonderful performance. Come. नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् कुणंग तक तो कतकिट तक दित्तलंग दित्तलंग तुम तरी कुणंग तक तो कतकिट तक तरी कुणंग तुम धी कुणंग तक तो कतकिट तक दित्तलंग तक तुम किटतक तरकिट तुम तरी कुणंग तक तो कतकिट तक दित्तलंग तक तुम किटतक तरकिट तुम धी कुणंग तक तुम तरी किटक तरी कुणंग तक तुम तरी किटक धी कुणंग तक तरी कुणंग तक दणक तक किणकु तक धी कुणंगु तक तरी कुणंगु तक किटतक तरकिटतम किटतक तरकिटतम किटतक तरकिटत धिम त चडुत धिम त तक तद धिम त झेडुत धिम त तट चड तरकिटतक धिम तरकिटतक धिम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सभाकल्पतरुर्भाति सभाकल्पतरुर्भाति वेद शाखोपशोभितः शास्त्रपुष्प समाकीर्ण विद्वद्भ्रमर संयुतः तं तं
తక్కిండంగిడ తగదరగిడ తగ తక్కిండంగిడ తగదరగిడ తగ తక్కిండంగిడ తగదరగిడ తగ తం తం తక్కిండంగిడ తగదరగిడ తగ తాం తం కిడతగదరగిడతం 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 తద్దింగిడతం 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 తరగిడతం 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 తద్దింగిడతం తగ తద్దింగిడతం తగ దిక్కు తద్దింగిడతం బ్రహ్మాంజలి తాండవ నృత్య స్రష్టకు దివ్యాంజలి నాట్య కేళనాలోలకు బ్రహ్మాంజలి తాండవ నృత్య స్రష్టకు దివ్యాంజలి నాట్య కేళనాలోలకు బ్రహ్మాంజలి తాండవ నృత్య స్రష్టకు దివ్యాంజలి నాట్య కేళనాలోలకు బ్రహ్మాంజలి భక్త్యంజలి సిద్ధ యోగీంద్ర సకవికి భక్త్యంజలి సిద్ధ యోగీంద్ర సకవికి నృత్యాంజలి లాస్య కోవిదవరులకు నృత్యంజలి లాస్య కోవిదవరులకు బ్రహ్మాంజలి తాండవ నృత్య స్రష్టకు దివ్యాంజలి నాట్య కేళనాలోలకు బ్రహ్మాంజలి శుభము శుభము సాహిత్య పరులకు తంగడతక తరగడతక తద్యుత్తంగడతక తరగడతక తక తరగడతక దిత్త 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 దిద్ది దిత్త శుభము శుభము సంగీత విదులకు తంగడతక తరగడతక తద్యుత్తంగడతక తరగడతక తక తరగడతక దిత్త 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 దిద్ది దిత్త శుభము శుభము నాట్యానుమోదులకు తంగడతక తరగడతక తద్యుత్తంగడతక తరగడతక తక తరగడతక దిత్త 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 దిద్ది దిత్త శుభము శుభము సర్వజనాళికి శుభము శుభము నాట్యానుమోదులకు శుభము శుభము సర్వజనాళికి బ్రహ్మాంజలి తాండవ నృత్య స్రష్టకు దివ్యాంజలి నాట్య కేళనాలోలకు బ్రహ్మాంజలి తాండవ నృత్య స్రష్టకు దివ్యాంజలి నాట్య కేళనాలోలకు బ్రహ్మాంజలి తదిం 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 తదచ్చడు తదిం తదిం దిం తదగతనన దిం తదిం తదిం తదచ్చడు తదిం తదిం. Thank you so much. So now the moment has arrived to invite the director and the most special person of our family, Kuldeep Didiji, on stage. So Kuldeep Didiji is serving for more than 50 years on the spiritual path. She has traveled all over the world to spread the word of peace, love, happiness and unity. So I would like to say one more thing, that as Diyas has made this night shine, your presence has made this evening very, very bright. So with claps, would like to invite on stage Kuldeep Didiji to explain us the spiritual significance of Diwali and to understand the way of how we should be, we should live and we should behave in our lives to make this family a universal family. So Kuldeep Didi on stage. So Didi has spent more than 68 years on this spiritual life, and I would like to invite on stage Dita and Arohi to receive godly blessings, gifts and spiritual blessings for Didi for their wonderful performance that helped them grow ever and ever and ever. So claps for both the two. So these moments are very spacious, as when we grow up, we remember these as our childhood memories. So this is the time to create very beautiful memories and move ahead in our lives.
So now we would like to hear from Didi about how we should make this Diwali special plus spiritual. Thank you, Didi. ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम सब दीपावली का पर्व हम कैसे मनाएं, दीपावली हम क्यों मनाते हैं, इसका भावार्थ क्या है, इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। दीपावली वैसे भी दीपकों का त्यौहार है ना, सब जगमगाहट लाइटिंग देखते हैं, खुशी होती है कि नहीं? हाँ, ज़्यादा जब दीपक देखते लाइट्स देखते हैं, कुछ लोग तो घूमने जाते हैं लाइटिंग देखने के लिए, तो हमको वो लाइट्स इतनी अट्रैक्ट करती हैं। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम अपनी आत्मा की ज्योति को जगाओ। थोड़े दिन पहले हमने कौन सा त्यौहार मनाया? हाँ, दशहरा। उससे पहले नवरात्रि। 9 देवियों की पूजा करने के बाद 10वें दिन रावण का दहन होता है। तो 10 को हराया, अर्थात 10 पर विजय प्राप्त की, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विकार। तो रावण जब यहाँ से उसका राज्य समाप्त हो जाता है तो राम राज्य आता है ना। ऐसे ही बताया हुआ ना शास्त्रों में कि राम जी ने विजय प्राप्त की, फिर वो अयोध्या में आए। लेकिन पूजा किसकी करते हैं हम दीपावली पर? क्यों ऐसा क्यों पलट दिया? हाँ, तो परमात्मा कहते हैं मैं हूँ आत्माओं का राम। परमात्मा शिव जो है आत्माओं का राम है, और हम बच्चों को शक्ति देता है अपने अंदर के रावण को जलाओ। और हमारी रावण से युद्ध है गुप्त रूप में। हम कोई लाठी चार्ज करना या चाकू चलाना, ऐसी कोई लड़ाई नहीं करते जो पुलिस को आना पड़े, लेकिन हमारी आंतरिक युद्ध चलती है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये विकार निकल जाए। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है, उसको दिल होता है कि नहीं गुस्सा छोड़ दूं तो अच्छा होगा। होता है मन गुस्सा छोड़ने का, किस किस को दिल होता है? तो यहाँ परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं, जितना आप मेरे साथ परम ज्योति परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी आत्मा की ज्योति सदा जागृत रहेगी। और आत्मा की ज्योति, क्योंकि डार्कनेस किसको बोलते हैं? इग्नोरेंस को। तो जब इस दुनिया में अज्ञान की अंधकार होता है, क्योंकि अमावस्या में ही है ना दीपावली का पर्व मनाया जाता है, तो जो राम ने विजय प्राप्त की रावण के ऊपर, फिर अयोध्या, पहले रावण से युद्ध दिखाते हैं ना, लेकिन वो स्थूल युद्ध दिखाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो यहाँ से एक बाण उधर से आ रहा है, एक बाण इधर से आ रहा है। ऐसी लड़ाई करने वाले देवताएं थोड़ी होते हैं। देवताएं हिंसक नहीं, हम क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो अयोध्या माना जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, ना मानसिक ना फिजिकल युद्ध नहीं होता है। तो अयोध्यापुरी में किनका राज्य था? लक्ष्मी और नारायण का। राम राज्य माना परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य, है ना। तो दीपावली का पर्व आने से पहले हम लोग सब अपने घरों में, ऑफिसेज में, दुकानों में सफाई करते हैं ना। कुछ लोग जो टेम्परेरी कलर डालते हैं तो वो फिर बार बार एवरी ईयर हाँ लीपा पोती भी करते, क्योंकि आजकल तो परमानेंट कलर डालते तो सिर्फ पोंछ दिया तो ठीक हो गया। पहले ज़माने में चूना होता था। तो एवरी ईयर दीपावली से पहले जो है सफाई माना वो चूना डाल देंगे तो सब कीटाणु भी खत्म, और जो भी दीवारों पे धब्बे आदि वो भी खत्म। तो इसलिए परमात्मा कहते अपने मन वचन कर्म को मनसा वाचा
कर्मणा से हमें अपने मन को शुद्ध बनाना है। हमारा मन जब शुद्ध होगा तन भी शुद्ध होगा, और ये पवित्रता की शक्ति से ही परमात्मा राम राज्य की स्थापना करते हैं। जैसे वो सफाई तो हम घर के अंदर की करते हैं ना, इस कॉर्नर में कचरा नहीं रह जाए, चलो हमारी छोटी सी भी कोई अलमारी है उसको भी क्लीन करेंगे, जो वेस्ट है उसको निकाल देते हैं ना। दीपावली के दिन रोज तो रोज झाड़ू लगता है हमारे घर में, पोछा भी लगता है, और कई लोग सेंट भी स्प्रे करते हैं। तो फिर दिवाली पर इतनी बहुत डीप सफाई क्यों होती? जो रह गया अंदर कचरा उसको हम क्या करते, पूरे वर्ष में जो चीज़ें काम में नहीं आई उनको निकाल देते। हमारे जीवन में भी बहुत सा कचरा है जो हमारे काम का नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इससे क्या होता है, मनुष्य के मन में जब विकार आता है उसकी दृष्टि में भी विकार आता है, उसकी वृत्ति में भी विकार आते, उसकी वाणी में भी विकार होते हैं, और उसके हर कर्म में आप देखेंगे विकार माना हमारे अंदर की विकृतियां, उसको समाप्त करना है। जब सफाई हो जाती है तो फिर हम क्या करते, लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। तो लक्ष्मी आती है आपके घर में दिवाली के बाद। किस किस को पैसा ज़्यादा मिला, जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, लक्ष्मी तो रूठ गई है, क्योंकि उसको ये वाली सफाई नहीं चाहिए। उसको जो है मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ हो, हमारा शुद्ध आचरण हो, शुद्ध दृष्टि हो, शुभ बोल हो हमारे मुख से, है ना, हमेशा शुभ शुभ निकलना चाहिए। तो परमात्मा कहते रियल में लक्ष्मी माना हम सब सतयुग में जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे ना, हमारे बैज जो टीचर्स बहनों ने पहने हैं लक्ष्मी नारायण का बैज है। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। जैसा लक्ष्य रखते हैं वैसे ही लक्षण आते हैं। आप अपने बच्चे को पहले से लक्ष्य देते हो, तेरे को डॉक्टर बनना है, तो छोटेपन से ही वो स्टेथोस्कोप लेके किसी को चेक करेगा, और वो कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल सिरिंज लेके इंजेक्शन लगाएगा, है ना, फिर किसी को ऐसे ड्रेसिंग करेगा, तो समझते इसके अंदर लक्षण तो आ रहे डॉक्टर के। तो इसलिए अगर हमें ऐसा बनना है लक्ष्मी और नारायण जैसा, तो हमारे अंदर जो भी विकार है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको समाप्त करना है। वो कब होगा? जब हम परमात्मा से उसकी याद में मन को एकाग्र करेंगे। दिया जलता है, हम बोलते हैं ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक दिया जलाते उससे अनेक दिए प्रज्वलित करते। तो जब मेरी आत्मा की ज्योति जागृत हो गई तो मेरा काम क्या है? औरों की ज्योति को भी जगाना है। जब हम आत्माओं की ज्योति जग जाएगी तो ये विश्व स्वर्ग बन जाएगा। सतयुग में हम स्वयं लक्ष्मी और नारायण बनकर जन्म लेंगे, क्योंकि गायन है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो कर्मों से बनते हैं। ऐसे ही फोटो लगा दी या चांदी की लक्ष्मी की पूजा कर ली, या कुछ कॉइन्स चांदी के रख के उस पर लक्ष्मी का फोटो है उसको रख के हम साल में एक बार पूजा करते। आपको लक्ष्मी तो रोज चाहिए, रोज क्यों नहीं करते लक्ष्मी का आवाहन? हाँ, तो हम लोग ये लक्ष्मी समझते, बस ये लक्ष्मी चाहिए। इस लक्ष्मी से कितने लोग परेशान हैं। पैसा ज़्यादा है तो भी परेशानी है, पैसा कम है तो भी परेशानी। ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ले जाएगी, है ना, कम है तो बेचारे रोते रहते, त्योहार कैसे मनाना, पटाखे कहाँ से लाना, बच्चे रोते पटाखे चाहिए, क्रैकर्स चाहिए, हमको गिफ्ट चाहिए। तो इस धन से सुख नहीं मिलता है। लेकिन परमात्मा कहते धन अर्थात ज्ञान रूपी धन, गुण रूपी धन,
शक्तियों रूपी धन जो है ना, जो परमात्मा से मिलता है। जब हमारा बुद्धि का योग परमात्मा से लग जाता है तो परमात्मा हमें बहुत से खजाने देता है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ अपने अंदर जब भर जाती हैं ना, तो फिर हमारे अंदर कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है कि मुझे ये मिले। क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य कहते हैं अगर आप इच्छाओं का त्याग कर देंगे, आपको जो चाहिए वो आपके पीछे पीछे आपकी शैडो की तरह चलेगा। जैसे हम लोग थोड़ी सी धूप होती है, बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हमारी परछाई आगे रहती है, शाम को फिर हमारी परछाई पीछे रहती है। तो इच्छा रखने से परमात्मा कहते अच्छा नहीं बन सकते। इच्छा मात्रम अविद्या जब हो जाएंगे तो आपको जो चाहिए प्रकृति आपकी दासी बनकर आपके पीछे घूमेगी। आपको जो चाहिए, सर्व प्राप्तियों का भंडार भगवान है। हम लोगों ने बीज को नहीं समझा और उसके एक एक पत्ते पत्ते को हम पूजा कर रहे हैं। इनको बनाने वाला कौन है ना? आपका बच्चा कोई बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई में जो है बहुत आगे बढ़ जाता है, एक अच्छा स्टेटस प्राप्त करता है, तो पूछा जाता है इनके माँ बाप कौन हैं? इतना अच्छा बच्चा है, इसके माँ बाप कौन है? हम भी अपनी चलन से, अपने परिवर्तन से परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते कि हम उनके बच्चे, जो सारे संसार का माता पिता है और वही नए संसार की स्थापना कर रहे। जब हमें कुछ मकान पुराना हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? बहुत पुराना है, रहने के लायक ही नहीं है, तो क्या करते हैं? उसको तोड़ देंगे ना। तोड़ने से पहले आपको कहीं तो शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना? तो परमात्मा भी कहते ये पुरानी दुनिया है, रावण की दुनिया है, यहाँ रावण का प्रभाव सदा सब पर रहता है। लेकिन हम जितना मेडिटेशन से अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, हमारी आत्मा की ज्योति सभी की जब जग जाती है तो थोड़े समय के लिए हमें भी ट्रांसफ़र होना पड़ता है। हम कहाँ जाएंगे? हमारा और एक घर भी होता है ना, तो हम उसमें चले जाते हैं और फिर नया बनने के बाद गृह प्रवेश करके फिर वहाँ जाते। तो हम इस दुनिया में आने से पहले हमको पता है हम यहाँ नहीं थे, है ना? कभी कभी दुनिया से किसी को वैराग आता है, वो सोचते ऐसी जगह जाऊं इतना दूर जहाँ कोई ना पहुँचे, मुझे एकांत चाहिए, शांति चाहिए। तो परमात्मा भी कहते आप पुनर्जन्म के चक्र में आते आते बहुत थक गए, प्रॉब्लम्स से भी थक गए। दुनिया में बहुत वैरायटी प्रॉब्लम्स चल रही। आप देखो, परिवार से प्रॉब्लम, समाज से प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, और अपने अंदर कितने प्रॉब्लम जो हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो सतयुगी दुनिया माना जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी और सभी आत्माएं सुख शांति से रहेंगे। तो अभी हम सब क्या करेंगे? अपनी आत्मा की ज्योति जगाएंगे या दिए जगाएंगे? हम पटाखे जलाते हैं, कितना भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया है, नहीं पॉल्यूशन नहीं बढ़ाओ, और पैसे ही जलाते हैं ना हम अपने। फिर बाद में क्या होता है? दिवाली या दिवाला? हाँ,
नेक्स्ट डे बोलते पूरा दिवाला निकल गया। क्यों? नए नए कपड़े भी चाहिए, जेवर भी चाहिए, अभी धनतेरस पर सोना खरीदो, चांदी खरीदो। अब गरीब क्या खरीदेगा बेचारा, सोना और चांदी, है ना। तो इस समय परमात्मा कहते कि ये गुण रूपी मोती, गुण रूपी जेवर जो है ना वो आप पहनो, जिससे, क्योंकि जो बहनें पहनती हैं ना, माला वाला पहना, बहुत ज्वेलरी पहन ली और वो बहुत चमचम करते, भाई बहुत चमक रहे हैं ये, तो वो क्या है, आप थोड़ी देर पहनते, बाद में घर में जाकर फटाफट उतार देते, है ना। लेकिन हम जो ज्वेलरी पहने हुए ना, आपको किसी को दिखता भी नहीं होगा। वो ज्वेलरी आत्मा का श्रृंगार करना है हमको। आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो विनाशी है और इसका श्रृंगार भी विनाशी है। गुम हो जाता है तो कितना दुख होता है ना। तो ये जो हमको परमात्मा श्रृंगार कराते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाते, ये देवताओं का टाइटल है। तो हमें अगर देवता बनना है तो अपने अंदर के अवगुणों को निकालना है। सफाई किसकी करनी है? अंतर मन की सफाई करनी है ना। अगर मन अच्छा हो गया तो क्या होता है, मन के साथ हमारे तन का भी संबंध है। जब मन ठीक नहीं होता है तो डिप्रेस्ड रहते हैं। आजकल बहुत डिप्रेशन की बीमारी कॉमन हो गई। कारण क्या है कि मन में हमको विचार क्या करने हैं उसका ज्ञान नहीं है। नेगेटिव सोचते रहते हैं और व्यर्थ सोचते रहते हैं। जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनके लिए हम चिंतन करते रहते, जो बीत गया उसका चिंतन करते रहते हैं। चला भी गया वो बात। जैसे बोलते हैं ना, सांप जब जाता है मिट्टी के ऊपर से तो सांप का निशान रह जाता है, लोग उसको ही पीटते रहते। तो जो पास्ट हो गया उसको याद करना ऐसा ही है जैसे कि वो सांप के निशान के ऊपर हम लाठी मारते, समझते हमने सांप को मार दिया, वो तो सांप का निशान है। तो ये सांप कौन से है हमारे अंदर? विकार। सांप से सब डरते हैं ना, हाँ, उसके नज़दीक जाने की हिम्मत होती है? किसी को बोले भाई शंकर जी ने गले में डाला हुआ है, आपको हम डाल दें? बोलते ना बाबा, हमको तो जीना है। हाँ? तो इसलिए ये जो हमने गले में विकारों के मालाएं डाली हुई है ना, इससे हमारे जीवन में बहुत दुख अशांति है। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है और तब परमात्मा से हम जब कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम सच्ची दीपावली मना सकते हैं। क्योंकि जब सब दिए एक साथ जग जाते ना, तभी अच्छा लगता है। और आजकल तो देखो ये जो है लाइट के दिए हैं, पहले तो घी के दिए जलाते थे, फिर तेल के जलाते थे। अभी क्या करें, इतना तेल जलाए, हवा आई, बुझ गया दीपक। बार बार उसको जलाने की कोशिश करते रहते हैं ना, हवा के झोंके से। आजकल तो खास दिवाली के दिन तो ज़्यादा ही हवा चलती है, आप बाहर दिए रख ही नहीं सकते। तो इसलिए ये दिया जो है अमर दीप है, हमारा आत्मा का दिया अमर है, ये कभी बुझता नहीं है। कब बुझता है? जब हम परमात्मा को भूल जाते। बाकी सब याद रहता है, परमात्मा की याद के लिए क्या कहते हैं, मन भटकता ही रहता है। तो इसलिए अपने मन पर भी कंट्रोल करना है, अपने वचन पर भी कंट्रोल करना है कि हमारे मुख से ऐसे रतन निकले जो किसी का जीवन श्रेष्ठ बन जाए। क्योंकि ये जुबान से बोलते हैं मनुष्य जो है राज तख्त पर भी बैठ सकता है और यही जुबान से फांसी के तख्ते पर भी जाते। जैसे पहले के लोग हैं ना, बहुत मौन करते थे, मौन तपस्या। आजकल तो मौन तो क्या, सारा दिन फोन ही है, मोबाइल।
मौन का महत्व भूल गए लोग। तो एक बार एक राजा ने एक मौनी बाबा को अपने पास बुलाया। वो भी उनके मंत्री ने आग्रह किया, बहुत जिद किया कि उनके एक महावाक्य का 1,00,000 रुपया होता है। अभी के ज़माने की बात नहीं, पुराना, अभी तो करोड़ों में सोचो उसका। तो बोला एक वचन 1,00,000 रुपया जचता नहीं है। तो बोले देखिए, हो सकता है आपकी प्रजा को, सबको फायदा हो, तो महाराज आप अपना एक वचन सुनाइए। तो उन्होंने कहा, जो भी आप कर्म करते हो उसका परिणाम सोचना, परिणाम देख करके आप कर्म करना कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। मालूम है ना हमको, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो बोला ये तो मेरे को मालूम था, जो भी करना है सोच समझ कर करना ही। क्या अच्छी बात है, क्या बड़ी बात है, तूने मेरा 1,00,000 रुपया वेस्ट करा दिया। बहुत डांट पड़ी उसको। उसने कहा, राजन हो सकता है दूसरों के काम में आए, इसलिए थोड़े स्लोगन बोर्ड्स पूरे घर में लगा दो, आपके कमरे में भी, किसी को तो फायदा होगा ना। क्योंकि इतना वर्षों से मौन करने वाले की वाणी में बहुत शक्ति होती है। वो शक्ति को हम नहीं समझते हैं ना, तो हमको साधारण वर्ड्स लगते, क्योंकि हम खुद साधारण रूप में हैं, हमको ऑर्डिनरी ही लगता है। पहले महान आत्माओं के वचन सुनने के लिए भागते थे कि एक वचन सुन ले हमारा उद्धार हो जाए। उसने जो है ना स्लोगन बोर्ड्स सब जगह लगा दिए। मंत्री को बोला ये भी तूने खर्चा मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा ही करा दिया है। फिर क्या हुआ, मंत्री थोड़ा जो है वो बहुत चालाक था। वो चाहता था ये राजा इतना भोला है ना, मैं जो बोलता हूँ वो सुनता है, तो अभी क्या करते हैं, इसको मारने का षड्यंत्र रचेंगे। उसने अपने कुछ साथियों को बोला कि मैं राजा बनूंगा तो तुम लोगों को मैं इतना इतना पेमेंट दूंगा, तो मेरा साथ देना आप लोग। सब खुश हो गए, हमको तो पैसा ही चाहिए, हमको क्या करना है, राजा कोई भी हो। तो एक डॉक्टर को, क्योंकि राजा बीमार था, एक डॉक्टर को बुलाया। तो वो डॉक्टर को बोला इनको पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो। तो पहले ऐसा सिरिंज को थोड़ा ऐसा ऊपर चेक करते थे ना, तो वो ऐसा ऊपर जाता है, तभी उसकी आंखें हैं ना वो स्लोगन पर चली गई, तो उसके हाथ से वो सिरिंज छूट गया। और भयभीत था, फेस पर भी मालूम पड़ा ये डर गया। तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों डर गए, लगा दो ना। तो फिर देखा राजा ने ये दूसरा सिरिंज लिया और दूसरा इंजेक्शन निकाला। तो बोला क्यों, बोला आप पहले एक वचन दो, पहले लोग वचनबद्ध होते थे, एक वचन दो कि उसको सजा नहीं देंगे तो मैं बताता। तो बोला ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं किसी को सजा नहीं दूंगा, तुम बताओ क्या है। उसने कहा आपके मंत्री ने षड्यंत्र रचा था, आपको मार करके वो राजा बनेगा। तो राजा को इतनी खुशी हुई, बोलते हैं ना हम लोग, जान बची तो लाखों पाए, है ना। तो हम जिंदा हैं तो बहुत कुछ कमा सकते हैं। अब जल्दी से लोग नौकरी नहीं मिली सुसाइड कर लेते, अरे आप कुछ करके देखो ना। तो उसको इतना अच्छा लगा, 1,00,000 रुपया मैंने वेस्ट नहीं किया, मेरी तो जिंदगी बच गई। लाखों करोड़ों से ज़्यादा कीमती जो है हमारा जीवन है। इसलिए आप सब भी आज चाह रहे होंगे ना हमारे बीच में लक्ष्मी आए। किस किस को इच्छा है लक्ष्मी को देखने की, साक्षात लक्ष्मी, हाथ उठाओ। सचमुच में आने वाली है, ऐसे झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। तो आप सब क्या वर मांगेंगे लक्ष्मी से, ये वाला नहीं मांगना, ये वाला विनाशी धन है, अविनाशी ज्ञान है ना। परमात्मा से हम उनकी गुण शक्तियाँ
वो लक्ष्मी लक्षणों से बनी है, वो लक्षण मुझे धारण करने हैं। जब हमारे में लक्षण अच्छे आ जाएंगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी, घूमेगी आपके घर में। आपको जितना आप सोचे भी नहीं होंगे इतना मिलेगा। तो इसलिए आप सब ताली बजाएंगे तो लक्ष्मी जी आ जाएगी। हाँ, तो हमारे बीच में हम लक्ष्मी का आह्वान करेंगे और फिर आप सबको है ना दिए जलाने हैं। वो एक एक्टिविटी भी हमारी बहनें कराएंगी। तो आप सबको फिर से दीपावली की शुभ बधाई हो और आप सच्ची दिवाली मनाना, अपने अंदर के रावण का दहन करना, बुराइयों को समाप्त करके अपने अंदर अच्छाइयों को, अच्छे गुणों को धारण करना और परमात्मा से अपनी ज्योति को जगाकर ज्योति से ज्योति जगाते जाना। ओम शांति। सो अब हम शाम के उस माहौल में जाएंगे जब कहते हैं कि दिवाली माना लक्ष्मी का आह्वान। तो आप सब लोग लक्ष्मी का आह्वान कौन से रूप में करते हैं? सिर्फ धन बढ़ना या संपन्नता, शांति, संपन्नता, सुख? और उस लक्ष्मी को हम एक देवी के प्रतीक में पूजते हैं और इसलिए दिवाली में लक्ष्मी पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमारे बीच में उस लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी देवी का हम आह्वान करेंगे, जो हमारे तन, मन, धन और संबंध सभी को संपन्न बनाएंगे। तो सब लोग अपने मन को एकदम शांत करें और उस संपन्नता को महसूस करें जो हम दिवाली के दिन के रूप में हमारे जीवन में चाहते हैं। नमो नमः ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः ॐ महालक्ष्मै नमो नमः ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम शांति। तो आज इस महालक्ष्मी के महापर्व को और सुखदायी और खुशियों से भरने के लिए हम बुलाएंगे मानस भाई जी को, जो अपनी खुशी को एक डांस के रूप में और ईश्वर की आराधना के रूप में हमारे बीच में रखेंगे। दिवाली सारे सितारे उसके दिए, हैप्पी दिवाली मेरे तुम्हारे सबके लिए, हैप्पी दिवाली सारे सितारे उसके दिए, हैप्पी दिवाली। जो भी गर्ल्स ऊपर आना चाहते हैं प्लीज ऊपर आ जाइए। इट्स अ फेस्टिवल फॉर एवरीवन। प्लीज कम, प्लीज कम। हम सभी में हर किसी के में है वही, वो ज़मीन आसमां हो, वो है हर कहीं। You want this one? Come. Hold it. इसको लेना पड़ेगा ना दीदी। जहाँ में हर कहीं Okay. भर दे रोशनी उसी के प्यार की, दिल दिल से वो मिला दे हर चेहरा वो मिला दे रुत। तो अब हम सब लोग मनसा द्वारा, संकल्प द्वारा और कर्मों से भी इस दिवाली के दिन को सुखी के साथ साथ शांति में भी बनाएंगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल वसंता दीदी to give us a wonderful experience of meditation
तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर रिलैक्स करके बैठ जाइए। हाथ में कुछ भी है तो सब कुछ साइड में रख के एक चित्त होकर जो भी डायरेक्शंस आपको यहाँ से दिए जाएंगे उसको पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से फॉलो करेंगे। ठीक है? ओम शांति। आज हम सब दिवाली मना रहे हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए हम सब इस दुनिया में अपने आप को लक्ष्मी जैसे बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो थोड़ा समय अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके आपकी दृष्टि एक जगह पर टिका के रखें और बहुत खुशी से शांतमय होकर अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक आत्मा सितारा देखे। मैं आत्मा दिया हूँ। जैसे दिए में ज्योति जगमगाती है, ऐसे ये शरीर रूपी मिट्टी का जो दिया है उसके अंदर आत्मा ज्योति जगमगा रही है। मैं आत्मा ज्योति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए परमात्मा दीपराज है। वो भी एक जगमगाता ज्योति मन के नेत्र से देखे। परमात्मा भाग्य विधाता है। और मैं अपने जीवन में भाग्योदय करने के लिए आज परमात्मा से जुड़ रही हूँ। सर्वगुण, सर्वशक्तियाँ, श्रेष्ठ कर्म मेरे जीवन में भाग्य उदय करने वाली चीज़ें हैं, जो आज मैं परमात्मा से किरणों के रूप में अनुभव कर रही हूँ। महसूस करें परमात्मा से सर्वगुण, सर्व शक्तियों की किरणें निकल रहे हैं और मैं आत्मा ज्योति सर्वगुणों से अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। इससे मेरा भाग्य उदय हो रहा है, फॉर्च्यून मेरा बढ़ा रही हूँ। मेरे संकल्प, बोल और कर्म से सर्व गुण और शक्तियाँ झलकेंगे। अपने संकल्पों के द्वारा
स्वयं और सर्व को सुख देने वाले, खुशी देने वाले श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। मैं दिया बनकर आज देते रहूँगी, खुशी देंगे, आनंद देंगे, सम्मान देंगे, शक्ति देंगे, क्योंकि मैं दाता हूँ। अपने वाणी से सम्मानजनक बोल, श्रेष्ठ बोल, खुशी देने वाले बोल से मेरे जीवन को मधुर, शक्तिशाली बना रही हूँ। मेरे कर्म मुझे भाग्य उदय करने वाले कर्म होगा। मेरे कर्मों से सभी को सुख मिलेगा। इससे मेरा जीवन संपूर्ण श्रेष्ठ बनेगा। आज मैं श्री महालक्ष्मी को सामने देखते हुए अपने अंदर भी सुलक्षणों को धारण करने की संकल्प करती हूँ। परमात्मा पिता से यही भाग्य उदय करने का ये मौका सच्ची दिवाली है। आत्मा ज्योति सदा जगा के रखने की ये श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प आज मैं धारण करती हूँ। इसी संकल्प से फील करें ये श्रेष्ठ शक्ति, जो ऊर्जा है पूरे शरीर में फैल रही है और आपका तन मन दोनों शांत शीतल हो रहे हैं। इससे स्थूल धन और ज्ञान धन, अनुभवों का धन सब मेरे अंदर समा रही हूँ। धीरे धीरे अपने आंखें खोले और ये संकल्प फिर से दोहराए, मैं अपना भाग्य आपे ही उदय कर रही हूँ परमात्मा शक्ति से। ओम शांति शांति। ओम शांति। तो सभी को एक विशेष शांति की अनुभूति के साथ साथ हम खुशी की अनुभूति भी कराएंगे, है ना। तो वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मानस भाई। ओके। रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सब
सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। हाथों में लेकर पूजा की थाली, लक्ष्मी जी की आरती उतारे। माथे पे अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा। जे अली घरे घरे मन खुशी से माते जे, चतुर्दिके आलो घोड़े जे अली आशे। ए दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी। हर दीदी को विश करेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज़, एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीदी। तो ऐसे ही आप सब लोग लाइन वाइज आइएगा। से करे अंतर मन की सफाई।